Hello everyone, welcome to Gyanboth Academy. Today is your 1st January. A very happy new year to everyone. This is one of the very important article I'm having from the Hindu, and which is very important regarding your internal security, which is your GS paper 3, and it will be very important especially for basically your Assam's history and what are the challenges Assam has been facing in last 4 decades. You can tell last 44 years Assam has been dealing with all the threats or insurgency by the Ulfa group. Okay, we are all aware of this fact. I hope you are all aware of this history of Assam, and it is very important regarding their national interest and state-wise also. So, before I jump into the discussion, let me give you a brief introduction to the topic. So, basically, the issue here is that the point here is that the government of India plus the state government, what state government of your Assam, okay, Assam state government, they have signed a peace accord. Peace accord, you can say, a peace treaty, you can say, with whom? With your Ulfa group. What is a Ulfa group? It is a See, your Ulfa group is, you all must be knowing about the history of Assam. Ulfa is your United Liberation Front of Assam. This is a terror group, you can say, or it led to insurgency in Assam from last 4 decades. Insurgency in Assam for all the indigenous peoples. Indigenous people मतलब असामी लोग जो वहाँ के रहते थे, वहाँ के नेटिव्स असम के, वो लोग के लिए इंसर्जेंसी वी ऑल नो, जो कम्युनिटी या जो ग्रुप होता है, फॉर एग्जाम्पल उल्फा ग्रुप, वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, मास किलिंग करना या थ्रेट करना, लोगों को डिस्टर्ब करना, मारना पीटना काटना, डिसऑर्डर लाना कंट्री में, वो आपका हो जाता है इंसर्जेंसी का मतलब. ठीक है, तो इसके साथ क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने पीस ट्रीटी साइन कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ योर होम मिनिस्टर अमित शाह. ओके, और वो पीस ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट. ठीक है, और हम लोग देखेंगे इसी में कि क्या क्या है. इसके पहले भी जैसे आपका ULF था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट था, जो आपका मणिपुर का था, वहाँ पे जो इंसर्जेंस ग्रुप था, इससे भी BJP गवर्नमेंट ने अपना ट्रीटी साइन किया था, पीस ट्रीटी. इसके अलावा आप 2020 में देख लीजिए, आपका ये थर्ड आपको थर्ड बोडो पीस अटैक था, पीस एकॉर्ड था, वो भी गवर्नमेंट में द्वारा साइन हुआ. तो हम लोग देख सकते कैसे रेगुलर गवर्नमेंट क्या किए हैं, उन्होंने इंडिया को या फिर इंडिया के इंटरेस्ट में काम किया, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर पीस एकॉर्ड साइन किया. और जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, यानी असम मणिपुर, मिज़ोरम, ये सब के इंटरेस्ट को सेव किया है, और उनको जो भी इंसर्जेंसी अटैक्स है या फिर टेरर एक्टिविटीज़ चल रहा था वहाँ पे, उस सबको एंड में लाया गया है, ये सब पीस ट्रीटी साइन करके. सो आई होप इट इज़ क्लियर. लेट अस जंप इनटू द आर्टिकल डिस्कशन नाउ. The headline reads, Tripartite Agreement provides a honorable exit to the cadre of a much weakened ULFA. जिसमें बोल रहा है कि ये एग्रीमेंट ये क्या है, पीस एग्रीमेंट किसके साथ किया गया है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस जो असम के जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी CM है, जो भी आप बोल सकते हैं, वो उल्फा ग्रुप के साथ किए हैं. उल्फा ग्रुप जो वहाँ पे डिसऑर्डर ला रहे थे असम स्टेट में, या फिर जो टेरर एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर रहे थे, या फिर इंसर्जेंसी, दिस इज़ राइट वर्ड, इंसर्जेंसी का जो ग्रुप था, इंसर्जेंट ग्रुप था, उल्फा ग्रुप के साथ पीस ट्रीटी साइन हुआ है. इट प्रोवाइड्स ऑनरेबल एग्जिट, मतलब उनका ये सब जो भी काम चल रहा था, इंसर्जेंसी चल रहा था, उसको ये पीस अकॉर्ड से बंद कर दिया गया है. एंड इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू देम, अब वो लोग ये सब कुछ मिलिटेंट एक्टिविटी में वहाँ इन्वॉल्व नहीं होंगे. So that is the main crux. Let us read. The signing of a tripartite agreement in New Delhi between the pro-talk faction of United Liberation Front of Assam, the Union Government and the Assam State Government marks the end of a process that began in 2009. Nearly 15 years ago, the chairman of ULFA, Arabinda Rajgoha, who went on to become the face of pro-talks factions, was arrested, even as other key leaders of the insurgent outset surrendered.
By 2011, following a unilateral ceasefire by the group, the ULFA's pro-talks factions had already signed a suspension of operations agreement with several cadres staying staying put at special camps called Nava Nibra Kendras. सो इसमें क्या बोला जा रहा है बेसिकली, लेट अस डिस्कस टिल हियर. इसमें बोल रहा है कि जो साइन हुआ है, क्या हुआ, ये एग्रीमेंट का पीस अकॉर्ड, ये पीस एग्रीमेंट का साइन हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है, यानी हमारे कैपिटल में हुआ है. बिटवीन हुम, बिटवीन योर प्रो टॉक्स फैक्शन यानी यूएनएफ ग्रुप, जो आपके इंसर्जेंट ग्रुप थे असम में, उनके बीच इन दी बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम और यूनियन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच साइन हुआ है. इससे क्या होता है, एक एंड होता है, मार्क होता है, जो प्रोसेस 2009 में शुरू हो गया. यानी 4 डेकेड से वहाँ पे इंसर्जेंट अटैक चल रहा था, या फिर ये उल्फा ग्रुप का अपना जो होता है ना दावादारी चल रहा था और दादागिरी चल रहा था. और उसके अलावा आप देख सकते कहाँ कितना वहाँ पे वायलेंट था, कितना ये ग्रुप वहाँ पे हर अलग अलग तरह के थ्रेट्स लाता था या फिर डिस्टर्बेंस लाता था कंट्री के लिए. इसके अलावा ये यानी आप समझ सकते हैं 44 ईयर्स का असम का इतना मुश्किल दौर था जो उसको इस ट्रीटी से एंड हो गया है. इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है कि नियरली 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, चेयरमैन यानी हेड थे जो उल्फा का, उनका नाम क्या था, एब्राबिंद्र राजकोआ. he went to become a face, he began to become a face of the pro talks faction. मतलब ये हेड बने थे ये उल्फा ग्रुप के, ये मिलिटेंट ग्रुप या फिर जो बोल सकते इंसर्जेंट ग्रुप है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था. ठीक है. हालांकि इसके जो अदर लीडर्स थे जो उल्फा ग्रुप के, वो सरेंडर कर दिए हैं. उन्होंने सब ने सरेंडर कर दिया ये सब एग्रीमेंट के बाद कि अब वैसा कुछ भी डिस्टर्बेंस असम में नहीं देखा जाएगा. इसके अलावा 2011 में ये जो ग्रुप था उल्फा ग्रुप, they had signed a agreement, that is a suspension of operation agreement with several cadres staying put at special camps at this kendra. तो फिर वो कहाँ रहते थे, कैंप्स में रहते थे. मतलब मिलिट्री कैंप्स जो होता है उसके अंदर अपना ग्रुप के जो मेंबर्स जो थे, लीडर्स थे, जो अदर इन्वॉल्वमेंट था लोगों का, वो लोग स्पेशल कैंप्स में रहते थे. उसको 2011 के एक एग्रीमेंट यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट के अंदर ये वाला कैंप्स में रहने वाला प्रोविजन को इन लोगों ने कट कर दिया था. ठीक है. नेक्स्ट, द कमांडर इन चीफ ऑफ द आउटफुट पारेश हैज़ अपोज्ड द dialogue process in 2019, insisting that the sovereignty issue to be a part of it, and since then his faction, the Ulfa Independent, had remained hostile to the peace process. The Ulfa is now a much weakened outfit when Baro believed to be in northeast Myanmar. The Ulfa has long lost its potential as a surgent force from its heydays in 1990s, when it managed to farm the discontent that persisted in rural Assam even after the Assam Accord of 1985. Since then, the organization has lost popular support, especially among the sections of Assam's peasantry, due to its violent tactics targeting civilians such as migrant workers and poor, replaying on extortion, besides espousing a flawed ideology that misconstructed the nature of the Indian state, which yield diminishing results. So इसमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है आपका, कि आपकी जो उल्फा ग्रुप था, जो इंसर्जेंट ग्रुप था, जो जिसकी वजह से असम में आपका डिस्टर्बेंस आ रहा था या फिर मार काट पीट चल रहा था, उसके जो कमांडर इन चीफ थे वो उनका नाम क्या था, पारेश बारो. ठीक है. वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2009 में जब ऐसा कर रहे थे, मिलिट्री इंसर्जेंसी दिखा रहे थे अपना असम में, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ भी मतलब ट्रीटी साइन करने का, पीस ट्रीटी साइन करने को मना कर दिया था पहली बात. उसके अलावा उन्होंने इंसिस्ट किया था मतलब कि डिमांड रखा था कि एक सॉवरेनिटी प्रोवाइड किया जाए. सॉवरेनिटी मतलब क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया जाए असम को. क्या उनका कहना था कि असम का क्या है, असम को एक सेपरेट स्टेट घोषित कर दीजिए, उसको इंडिया से हमारे अलग कर दीजिए, ऐसा उनका डिमांड था. क्यों? क्योंकि असमी लोग जो वहाँ के थे उनका इंटरेस्ट यानी इंडिजिनस पीपल का इंटरेस्ट बचा रहे. आप लोग जानते होंगे एक इंडिजिनस पीपल, ये जो असमी पीपल थे वो अपने लैंड, अपने रिसोर्स, ये सब को लेकर बहुत कॉन्शियस थे. मतलब कि वो चाहते थे कोई बाहरी लोग जो रेफ्यूजीज या इलीगल माइग्रेंट्स आके रह रहा था असम
असम में, ये लोग उनका ये सब राइट्स लेते जा रहा था। इसीलिए उनका ऐसा कुछ डिमांड था कि असम को इंडिपेंडेंट या सॉवरेन बना दीजिए, इंडिया से उसको सेपरेट कर दीजिए और एक अलग स्टेट घोषित कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक हॉस्टाइल प्रोसेस रहा टू द पीस प्रोसेस। उसके अलावा क्या हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रुप क्या हुआ, वीक हो गया। इसीलिए आज के टाइम में नेगोशिएशन क्यों हो पाया, पीस अकॉर्ड ये लोग क्यों साइन करने के लिए आज के टाइम इतना साल बाद या 4 डेकेड के बाद रेडी क्यों हो गए, क्योंकि ये ग्रुप वीक हो गया। कैसे वीक हो गया, क्योंकि क्या हुआ था ना, देखिए आपका 1990s के समय ये बहुत हाई पे था, ये ग्रुप एकदम फायर की तरह ये काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा टेररिज्म प्रमोट कर रहा था एज टोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा टेररिज्म एक्टिविटीज़ प्रमोट कर रहा था, कहाँ, असम में गलत तरीका यूज़ कर रहा था। तो क्या हुआ, अब के टाइम पे ये पॉपुलर सपोर्ट अपना खो दिया असामी लोग के बीच। पहले असामी लोगों को लगता था कि हमारा इंटरेस्ट को सेव कर रहा है, हमारे स्टेट को बचा रहा है, हमारी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने लैंड को बचा रहा है असामी लोगों के फ्रॉम योर इलीगल माइग्रेंट्स यू कैन से, और या फिर जो भी रेफ्यूजीज आके रह जा रहे थे असम में। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों का, असम लोगों का पॉपुलैरिटी इस पर गिरते गया। क्यों गिरते गया, क्योंकि ऐसे लोग, ये ग्रुप क्या चीज़ में, गलत गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। फॉर एग्जांपल ये टारगेट करती थी सिविलियंस को, मारना पीटना काटना ये सब हरकत। फिर रेपिंग में इन्वॉल्व, एक्सटॉर्शन मतलब हाई अमाउंट ऑफ डेथ में इन्वॉल्व करते थे, रेपिंग एंड और क्या करते थे, ये एक गलत आइडियोलॉजी इंडियन स्टेट्स के सामने रखते थे, जिसकी वजह से इनका पॉपुलैरिटी कम हो गया, ये ग्रुप आपका वीक हो गया। और इसी समय सही मौके पे क्या हो गया, ये पीस ट्रीटी ये लोग साइन करने के लिए रेडी हो गए और ये ग्रुप एंड हो गया। नेक्स्ट, military operations by Bhutan in nearly 20 broke this insurgent might, and later the Sheikh Hussain-led Awami League government in Bangladesh handed over most of the outfit leaders. Since then, the pro-faction gave up the demand for sovereignty and revised its charter of demands to accommodate the interest of the indigenous people of Assam while seeking an honorable exit. The delay in the constitution in the conclusion to talk meant that some cadres had left the camp over the years, with few joining the ULFA. But reports indicate that recruits to Barrow-led organization have fallen drastically in recent years. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि बेसिकली ये जो मिलिटेंट ऑपरेशन था, मतलब इस तरह का ये लोग जो थ्रेट लाते थे असम में, किसके द्वारा, आपके जो कमांडर इन चीफ ग्रुप के थे जो उल्फा के, भुट्टा, वो उनके प्रेजेंस में या हेड के प्रेजेंस में जो है ये जो होता था, ये आपका भूटान के ये की मदद से भी होता था। मतलब हमारे जो नेबर्स हैं, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान, इनके मदद से ही उनको क्या मिलता था, ये ग्रुप को सपोर्ट मिलता था, उल्फा ग्रुप को। क्या होता था, वेपन्स प्रोवाइड करना, ये सब ग्रुप क्या करते थे, वेपन्स प्रोवाइड करते थे हार्मफुल, या इनको रहने के लिए स्टे करने के लिए जगह देते थे। तो इससे क्या होता था, इस ग्रुप को बढ़ावा मिलता था इन योर अर्ली 20s। इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है कि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट जो था आपका, अवामी लीग गवर्नमेंट था बांग्लादेश में, उन्होंने क्या किया, ही हैंडेड ओवर मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स लीडर्स। उसके अलावा ये जो आपका जो बातचीत हुआ, ठीक है, कि उनको डिमांड कर रहे थे कि वो इंडिपेंडेंस हो, अपना सॉवरेनिटी हो असम का, इट हैड बीन रिवाइज्ड and the demand to accommodate the interest of the indigenous people of Assam was seeking an honorable exist। तो फिर दोनों चीज़ ये पीस ट्रीटी के द्वारा कैंसिल किया गया कि पहले जो टॉक्स हुआ उसके तहत ये डिसाइड किया कि कोई भी सॉवरेनिटी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब असम हमारे इंडिया से अलग नहीं होगा, उसको सेपरेट स्टेट नहीं घोषित किया जाएगा। प्लस जो इंडिजिनस पीपल है, यानी आसामी है, लोकल पीपल या नेटिव पीपल थे असम के, जिन पर पूरा हक है असम के स्टेट पे, उन लोगों का राइट्स को सेव किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे में ये ग्रुप एग्जिट मारेगा या फिर इंसर्जेंट ही स्टॉप करेगा आपका असम में। इंडिजिनस पीपल, रिमेंबर योर नेटिव्स या योर बेसिकली पीपल ऑफ असम। क्यों ये वॉर हुआ था, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, इफ़ यू नॉट अवेयर ऑफ, यू लेट मी टेल यू लिटिल बिट। कि असम में क्या होता था ना, कि बांग्लादेश के जो भी आपके इलीगल माइग्रेंट्स थे, वो आकर, क्योंकि असम हमारे बॉर्डरिंग में है, वो आके बॉर्डर में है, तो फिर क्या है, यहाँ पे घुस जाते थे।
अब क्या होता था, खूब सारे इलीगल माइग्रेंट्स आते थे, तो इसमें क्या होता था, इंडिजिनस पीपल यानी आसामी लोग को लगता था कि मेरे ही लैंड में ये लोग आ गए, मेरा लैंड, रिसोर्स, कल्चर, ये डाइवर्सिटी या फिर आप बोल सकते हैं लैंग्वेज पे हावी हो रहे हैं, ठीक है। इसी को सेव करने के लिए या फिर आसामी पीपल का वॉइस रेज करने के लिए ग्रुप आया। लेकिन क्या हुआ, बेसिकली ये ग्रुप बाद में जाके एक मिलिटेंट ग्रुप बनते गया या फिर टेरर ग्रुप बनते रहा, जो गलत गलत एक्टिविटी करना, एक्सटॉर्शन करना, रेप करना, लोग नॉर्मल सिविलियंस को मारना, धमकाना, ये सब काम करने लगा। अपना इसका पॉपुलैरिटी क्या हुआ, लो होने लगा या वीक होने लगा, और फाइनली ये पीस अकॉर्ड साइन करके इसको एंड किया गया। तो दैट वाज द होल सिनेरियो। नेक्स्ट, वेट एक मिनट, ये भी लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं। द डिले इन द कंक्लूजन टू टॉक मीट्स सम ऑफ द कार्टर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि बेसिकली कि बहुत लोग ये कैंप छोड़ दिए थे। इन लास्ट ईयर देखा गया कि उल्फा से बहुत लोग एग्जिस्ट मार दिए, ठीक है। कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था इन लोगों को, प्लस इनका पॉपुलैरिटी कम हो गया था, ये ग्रुप वीक होते जा रहा था। बट रिपोर्ट्स के माने तो बहुत लोग ज्वाइन भी किया है, लेकिन क्या हुआ, कंपेयर किया जाए पास्ट ईयर से तो द ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेशन हैज़ ड्रास्टिकली फॉलन, मतलब लोग इससे दूर हटते गए, इसके जो भी लीडर्स थे या फिर जो इसमें इस ग्रुप के पार्ट थे वो धीरे धीरे कम होते गए, इनका पॉपुलैरिटी कम होते गया, और बहुत लोग कैंप अपना छोड़ भी दिए। जो लोग मिलिट्री कैंप में अपना स्टे रखते थे या वहाँ पे अपना हक जमा के रखते थे, वो सभी उन्होंने छोड़ दिया। नेक्स्ट, the threat of militancy from the remnant of Ulfa might have succeeded dramatically over the years in Assam, but much need to be done to raise the livelihood standards of the peasantry in the northeast states. Persistent poverty has been a key reason for mobilization of a narrow ethnic base, a radical version of which has been exposed by organizations such as your Ulfa. इसमें क्या एक सजेशन दिया जा रहा है या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ये जो मिलिट्री वाला था, इंसर्जेंसी वाला, वो एंड तो हो गया है, उल्फा ग्रुप तो एंड हो गया, पीसी अकॉर्ड तो साइंड हो गया, लेकिन कुछ और करना चाहिए ताकि वहाँ का लाइवलीहुड जो इतना ख़राब हुआ स्थिति, वो सबको वापस से रीगेन किया जा सके। हालांकि गवर्नमेंट ने किया भी, इस ट्रीटी में जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है, उस ट्रीटी के तहत इन लोगों को पार्टिसिपेशन मिला है अपना पार्लियामेंट वगैरह में। बोला गया इनकी नेशनल इंटरेस्ट को सेव किया जाएगा, इनके अपना लैंड को, रिसोर्स को सेव किया जाएगा, पर मच नीड्स टू बी डन टू सेव देयर लाइवलीहुड। एंड इन होल ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल है स्पेशली, उनके लिए करना होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या देखा जाए, कंटिन्यूस पॉवर्टी देखा गया आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, और यही रीज़न है कि इतना नैरो बेस्ड एथिक हो रहा है या फिर ऐसे ऐसे हरकत वहाँ हो रही है। रेडिकल वर्जन जो है वो यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, और इसीलिए ऐसे ग्रुप्स या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आपको फ्रीडम मिल रहा है, लिबर्टी मिल रहा है, और ऐसे इंसर्जेंट बिहेवियर देखा गया आपके असम में। So that was all for today. You can go through the article and get much understanding. Thank you and have a wonderful day ahead.